when conflict is mismanaged, it can cause great harm to a relationship. But when it is handled in a respectful, positive way, conflict provides an opportunity to strengthen the bond between two people. So, by learning these skills for conflict resolution, you can keep your personal and professional relationships strong as well as growing. So, Dr. Manjula Sularia will be touching upon the causes of conflict and how you can manage conflict in a very positive and respectful way. I'll give you a situation, right? And उस situation पे आप discussion करेंगे. उसके बाद, we'll start with the, kind of understanding कि what were the reasons where we could not, come to a mutual consensus. Yeah, where, we had to be a little better, or, some points, some aspects that were left out. Okay, so yeah, so ma'am, ऐसा है कि I'll need a little help of yours, right? So basically, I'm gonna give a situation, right? And those situation ke accordingly, all of you there, you will be given different roles, right? So aap apne roles ke accordingly, then you will be, matlab split up into different, four different groups, in fact. So one will be the group of students, another will be the group of the teachers, one will be a group of the management, which can be the principal, the vice principal, the somebody who's a superintendent, or from the accounts department, right? So who are not into the academics, but they generally, kind of manage the things, or who have more of these administrative roles, right? So that will be the college management. And the third group will be a social activist group, right? Sorry, fourth group, that's the fourth group, which is a social activist group, right? So now, yes, you will be discussing, you will be talking in relevance to the role that you've taken up, right? जिस भी आप रोल में हैं, आप उसके अकॉर्डिंगली अपने जो भी विचार, जो आपको लगता है कि यस, ये हमारी सोच है, ये इस टाइम पे इस तरह का, हमारा एक एक्शन होना चाहिए या डिसीजन होना चाहिए. सो आप उसके अकॉर्डिंगली, अब अपने रोल के अकॉर्डिंगली, जो भी आप आगे की इंटरेक्शन देंगे, वो अपने एज पर योर रोल होंगे. बट लेट मी गिव यू अ सिचुएशन. हाँ, अब आप सिचुएशन समझ लीजिए, बिकॉज इट्स अ केस स्टडी, एंड दिस इज अ रियल केस स्टडी विच वाज इन द न्यूज़पेपर्स आल्सो, इट वाज ऑल ओवर इन द मीडिया चैनल्स आल्सो, right? And it is relevant, it is related to one of the girls college based in Bhiwani, which is in Haryana. ये एक गर्ल्स कॉलेज का जो एक रियल एपिसोड है, रियल सिचुएशन है. एंड सिचुएशन ये था कि देयर वाज अ लॉट ऑफ ईव टीजिंग हैपनिंग आउटसाइड द गर्ल्स कॉलेज, राइट? बहुत ज्यादा इट हैड बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर द गर्ल स्टूडेंट टू काइंड ऑफ कम्यूट, घर से कॉलेज आना और कॉलेज से वापस घर जाना वाज गेटिंग वेरी डिफिकल्ट, because there used to be a big crowd of especially boys standing outside the college. And then there was all sort of, not just eve teasing, but all sort of kind of जो हम कहें कि ज्यादा embarrassing या humiliating moments थे for the females, right, for the girl students. So इसके चलते the college management, they took a decision कि the girls will be banned to wear western dresses. So the management आपने ये decision लिया कि लड़कियों को उनका western dresses पे हमें वो एक तरह से पाबंदी लगा देनी चाहिए, क्योंकि लड़कियां जब वेस्टर्न में कुछ भी पहन लेती हैं, they don't maybe kind of realize कि yes, sometimes they are inviting the problem, right? जिसमें खासकर jeans पे there was a ban, and a ban was simultaneously put on carrying of mobile phones to the college, राइट? सो दो चीजों को बिल्कुल पाबंदी लगा दिया गया कि ना ही आप मोबाइल फोन्स लेकर आएंगे जब आप कॉलेज प्रेमिसेस में हैं, एंड देयर बी नो वेस्टर्न ड्रेसेस इन द कॉलेज आवर्स, राइट? So now the students, definitely students were not happy with this decision. उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, and they felt that this was a kind of a injustice happening to us, and they wanted to reach out to the management. So अब वो क्या करेंगे, कैसे they should go and speak to the management and discuss this issue that they are not kind of convinced about it. Teachers have a very important role to play, right? Now teachers, you are the connecting link between the management and the students,
राइट। आपको देखना है कि यस अगर मैनेजमेंट ने ऐसा डिसीजन लिया है तो क्यों लिया है, राइट। सिमिलरली इफ द स्टूडेंट्स आर नॉट इन फेवर ऑफ इट, देन हाउ यू वुड कन्विंस द स्टूडेंट्स एंड हाउ you would make the things kind of working at a kind of with mutual consensus and everybody's collaboration, right? सोशल एक्टिविस्ट जो हर प्रॉब्लम को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने के लिए होते हैं, लोग जो आपको लगता है कि ये मैनेजमेंट ने जो डिसीजन लिया है ये गलत है, ये बच्चों के साथ बेइंसाफी हुई है, राइट, एंड ऐसा नहीं होना चाहिए था। सो यू आर मोर देयर टू इंस्टिगेट, टू प्रोटेस्ट, टू get the media into the picture and maybe the government scenario कि इस तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में ऐसा डिसीजन दिया गया है, तो दिस इज अगेंस्ट द kind of development of the students, right? So अब उसमें आपका discussion is the most important. How the management and why the management has taken this decision वो थोड़ा सा मैंने आपको बताया है, but आपके और क्या point of view है? What do you feel कि yes इस मतलब concern के related या इस problem के related ये decision कितना सही है, कितना गलत है? Similarly, as students, how much are you really now desperate कि आप मैनेजमेंट को कन्विंस कर सकें या हमको कहीं ना कहीं एहसास दिला सके कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, जिसमें आपका साथ सोशल एक्टिविस्ट देंगे, राइट? और साथ ही टीचर्स, अब आपका रोल बहुत क्रूशल है, राइट? आपका रोल बहुत ही कहीं ना कहीं यस गंभीर है, जहां पे यू रियली नीड टू सी कि यस आपसी अमन के साथ, शांति के साथ हम किस तरह से इस मुद्दे को सुलझा पाएंगे। सो वी स्टार्ट द डिस्कशन विद whom? Wonderful, and thank you so much to all of you for such a full on participation. Okay, अब मैं थोड़ा सा एक बार recap करूंगी जो जो points discuss हुए थे, ताकि हमें दोबारा से हम connect हो पाए मुद्दे से, issue से and उसके related जो हमने decision लिया है। ओके, सो ये एक सिचुएशन थी जहां पे वही है कि मैनेजमेंट ने एक डिसीजन ले लिया, राइट? और मतलब वही है कि डिसीजन वाज इन रेलेवेंस टू द स्टूडेंट्स और उनका पहनावा, कि मतलब या तो कंप्लीटली वेस्टर्न ड्रेसेस बैन कर दी जाएंगी या फिर कुछ उस तरह का हमें ड्रेस उसमें एक कोई चेंज लाना पड़ेगा कि जिसकी वजह से जो उन्हें लगता है कि यस प्रॉब्लम आ रहा है खासकर बाहर के स्टूडेंट से, राइट, जो बच्चों को छेड़ रहे हैं और उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, और उसमें मोबाइल फोन्स पे भी पाबंदी लगा दी गई, राइट? अब डिसीजन ले लिया गया, राइट, और उसके बाद प्रॉब्लम शुरू हुई। मतलब वही चीज है कि जहाँ पे स्टूडेंट्स एकदम एंटी खड़े हो गए, फिर उन्होंने टीचर्स को अप्रोच किया, सोशल एक्टिविस्ट के पास गए। मतलब पहले ही डिसीजन ले लिया गया था और उसके बाद हम लोग एक साथ बैठे हैं और अब हम एक दूसरे को सुन रहे हैं। सो क्या हमारा ये जो अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग कुछ डिफरेंट होना चाहिए था? तो वही चीज है कि जो हमें अब बाद में समझ हुआ, आया, रियलाइज हुआ कि स्टूडेंट्स एकदम भड़क गए और मे बी हड़ताल करने लग गए और यस वो बिल्कुल मैनेजमेंट की सुनना नहीं चाहते थे, राइट? तो वही है कि ये जो शायद मैनेजमेंट ने शुरुआत में, और ये दिस इज अ रियल केस स्टडी, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, राइट? ये गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भिवानी का मतलब एपिसोड है जो कि सारे न्यूज चैनल्स पे भी फ्लैश हुआ था, और उसमें भी मैनेजमेंट ने पहले डिसीजन ले लिया था, राइट? लेकिन जो जो उस टाइम पे नहीं हुआ था वो सिचुएशन हमने आपको दिया कि जिसमें अब हमने वो जो सारी 4 एंटिटीज इन्वॉल्व थी, मतलब मैनेजमेंट जिन्होंने डिसीजन लिया, स्टूडेंट्स के मतलब सबसे ज्यादा इससे स्टूडेंट्स प्रभावित हुए हैं, राइट? फिर उसमें जो टीचर्स जो एक कनेक्टिंग लिंक है, और अगर स्टूडेंट्स को लग रहा है कि वो पूरी तरह से यस उन्हें जस्टिस नहीं मिल रहा है या कोई उनकी पूरी तरह से बात नहीं सुन रहा है, तो देन दे वुड रीच आउट टू द सोशल एक्टिविस्ट। नहीं तो सोशल एक्टिविस्ट खुद भी घुस जाते हैं, राइट? जहां पे भी उन्हें लगता है कि यस ये एक मुद्दा है, मतलब यस मे बी उस पर ध्यान देने की जरूरत है या उस पर हमें कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। अब अगर हम देखें कि जो मैनेजमेंट के कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज थे, क्योंकि हमने इस वक्त सबके पॉइंट ऑफ व्यू सुने हैं, तो जो मेजर मुझे लगे थे, एक था कि मैनेजमेंट ने कहा कि जो ये डिसीजन लिया है दिस इज नीड ऑफ द आवर, इस वक्त टाइम की जरूरत है,
राइट, ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बच्चियों को ही बर्दाश्त करना पड़ रहा है, उन्हीं के लिए कॉलेज से आना और जाना मुश्किल हो गया है। तो एज पर अभी जो जिस तरह का एक तरह से एक थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट बना हुआ है, उसको थोड़ा सा काबू करने के लिए, उसको थोड़ा सा मे बी कंट्रोल में लाने के लिए ये डिसीजन जरूरी है कि या तो हम उनकी ड्रेसेस पे किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन लगा दें, या फिर हम यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंट कर दें। फिर उसके बाद जो मैनेजमेंट ने कहा कि एक एक वो था कि जो भी हम लोग अगर उनका एक अटायर डिसाइड भी कर रहे हैं, अगर यूनिफॉर्म भी नहीं है, तो वो अकॉर्डिंग टू द मेंटालिटी ऑफ द एनवायरनमेंट होना चाहिए एंड मेंटालिटी ऑफ द सराउंडिंग्स होना चाहिए। कि वही बात है कि अगर हम गोवा जा रहे हैं तो हमारा पहनावा कुछ और होगा, लेकिन अगर हम मतलब स्कूल कॉलेज या इंस्टीट्यूट में आ रहे हैं तो हमारा पहनावा हमारी एकेडमिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। क्योंकि वो भी एक आपका टीचर्स का एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि आपका अटायर भी आपका ध्यान भटकाता है, राइट। वही चीज है कि हमारा कितना टाइम एनर्जी चला जाता है दूसरों का यस ड्रेस नोटिस करने में, या खुद का ध्यान रखने में, यस कि मैं अच्छी लग रही हूँ या नहीं, राइट। और उसी में जो हमारा मेन फोकस है हम उससे भटक जाते हैं। फिर उसके बाद मैनेजमेंट का था कि यस इसके बाद इनफैक्ट इसके रेलेवेंस में स्टूडेंट्स ने बोला कि यस अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम आ रही है और आप हमारी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, तो जरूरत है उन एंटी सोशल एलिमेंट्स को सेंसिटाइज करने की, ना कि हम पर पाबंदी लगाने की, राइट। आई थिंक दैट वाज अ वेरी वेरी वैलिड पॉइंट। कि वही चीज है कि गलती हमसे नहीं हुई है, गलती कोई और कर रहा है, कोई और किसी और की इंटेंशंस, किसी और की मंशा गलत है, जिसकी वजह से हमें भुगतना पड़ रहा है। लेकिन एज इट इज जहां हम लोग विक्टिमाइज हो रहे हैं, वहीं पर हम ही पर वो एक तरह की रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की जा रही हैं। तो ये तो डबल इनजस्टिस हो गया, राइट। और इसीलिए सोशल एक्टिविस्ट ग्रुप को इन्वॉल्व किया गया था, वेरी फ्रैंकली। उनका मेन रोल यही होना चाहिए था, सिर्फ भड़काने का नहीं होना चाहिए था। उनका रोल यही होना चाहिए था कि यस नाउ वी नीड टू क्रिएट दैट अवेयरनेस, वी नीड टू क्रिएट दैट सेंसिटिविटी, जहां पे जाकर इन ये जो एंटी सोशल ये जो बॉयज ग्रुप है या जो ये मेंस ग्रुप है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उनको समझाया जाए, उनको सेंसिटाइज किया जाए कि ये जो आज समाज है जहां पर यस दोनों वर्ग का इक्वल एक सम्मान होना चाहिए, इक्वल फ्रीडम टू ऑपरेट होना चाहिए, वहां पर अगर हम किसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा क्राइम है। और उस वक्त प्रॉब्लम ये हो गया था कि हर कोई अपने रोल में इतना गंभीरता से चला गया था कि हर किसी को जस्टिफाई करना था कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है। as social activists, as management, as teachers, right, and students, eventually जो पूरा हमने इसको समराइज किया, बात आकर उस पे हुई कि yes let's have a uniform now. दैट मीन्स हम कोई किसी पे पाबंदी नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हम एक नया सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं जिसके कई वैलिड पॉइंट्स थे यूनिफॉर्म के। कि एक तो यस सब सिमिलर लगते हैं, तो इट एज इट इज क्रिएट्स दैट यूनिफॉर्मिटी, राइट। किसी का कौन किस परिवार से आ रहा है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा, जब हम एक एजुकेशनल सेटअप की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उसका अनुशासन, डिसिप्लिन। सो यूनिफॉर्म इज विच एक्चुअली प्रमोट्स दैट डिसिप्लिन। तो आई थिंक ये एक कॉमन कंसेंसस भी था। सो वही चीज है जो अभी सबसे अच्छा हुआ इस पूरी डिस्कशन के दौरान। वो क्या लगता है, क्या हम सब ने सबसे ज्यादा इससे बेनिफिट किया? हमारा भी ये जो अभी का एक ये एक्टिविटी था सर, ये वही था कि हम थोड़ा सा अपनी सोच के दायरे बड़े करें। यही सबसे ज्यादा हमारा इसका सबसे बड़ा टेक अवे था। जहां पर पहले तो हमने एक दूसरे के रोल में एंटर करके उनके जो रोल की यस कहीं जिम्मेदारियां हैं, जो एक उनका एक नजरिया है, और किसी का नजरिया गलत नहीं था। इसमें जो हमने सबसे ज्यादा जो हमने बेनिफिट किया है वो ये किया है कि हम सब एक दूसरे की सुन पाए, और देन इट वाज एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज, एक्सपेंशन ऑफ थॉट्स। अगर देखा जाए दिस वाज अ कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन। कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है? कॉन्फ्लिक्ट वही बात होती है कि जहां पर हमारा सोच और नजरिया एक दूसरे से विभिन्न होता है, आपसी सहमति नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर भी इन स्पाइट ऑफ 4 डिफरेंट एंटिटीज, 4 डिफरेंट ग्रुप्स, इतना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, हम एक म्यूचुअल कंसेंसस तक पहुंच पाए, हम एक कॉमन डिसीजन तक कहीं ना कहीं यस आपसी सहमति से आ पाए। तो ये क्या कारण बन गए थे? जो हमने अभी किया वही बेसिकली इज द
the best way to reach to a conflict resolution. सबसे पहली शुरुआत तो थी कि हम सुनने के लेवल पर आए थे। जहां पर भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, जहां पे भी हमारी सोच से परे कोई बात की जाती है, अक्सर हम उसको सुनना ही नहीं चाहते, राइट और वही चीज होता है कि वहीं से वो प्रॉब्लम और बढ़ना शुरू होती है। बल्कि हम मैक्सिमम टाइम्स जब एक कॉन्फ्लिक्ट को, किसी एक मन मुटाव को कम करने के लिए भी मिलते हैं, तो हम क्या किस अप्रोच से जाते हैं कि हम उनकी सुनेंगे, उनकी प्रॉब्लम को जानेंगे, या फिर नहीं 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 हम उनको समझाएंगे कि आप गलत हैं। जब हम ये जो एक पहले ही एक अपनी सोच मतलब निर्धारित कर लेते हैं कि ऐसा ही होने वाला है, ये यही कहेंगे, ये इनका ऐसा ही मिजाज है, इनका ऐसा ही वे ऑफ डीलिंग थिंग्स है, तब भी हम प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हैं। तब तब फिर प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। इसको जो हम एक तरह से एक प्री जजमेंटल या फिर जो हम कहते हैं कि यस, एक हम अपना ही प्रेजुडिस, एक अपना ओपिनियन बना लेते हैं दूसरे के बारे में। ये कहेगा तो यार मुझे पता है ये यही कहने वाला है, इसने पिछली बार भी ऐसा ही किया था, राइट, इसका मेरे को पता है कि इसका हर बार का ऐसा ही है। जो हम एक पहले ही एक अपनी धारणा बना लेते हैं दूसरे को लेकर, इससे पहले कि वो कुछ बता पाए या अपने आप को किसी तरह से जस्टिफाई कर पाए, हमने उनके बारे में एक ऑलरेडी डिसीजन बना लिया है। इजंट दिस एक्चुअली वन ऑफ द प्रॉब्लम, वन ऑफ द रूट कॉज टू द प्रॉब्लम? और फिर उसमें ऐसा होता है कि वो अगर कुछ सही भी बता रहे हैं और हम उनके बारे में उनका पास्ट गलत जानते हैं, तो उनकी सही बात भी हमें गलत ही सुनाई देती है। इनफैक्ट अब हम जब कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। वन इज इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, जो नॉर्मल हम एक इंसान को दूसरे इंसान से कहीं आपका कहीं मन मुटाव है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, राइट, या आप आपसी एक कॉमन डिसीजन पे नहीं आ पाते हैं, और फिर वो एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन बन जाती है। इट कैन बी बिटवीन टू पीपल, इट कैन बी बिटवीन टू ग्रुप्स, इट कैन बी टू डिफरेंट सेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी, राइट, कुछ भी हो सकता है। और एक होता है इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट जो आपका खुद से है, जो आप खुद एक अपने आप को कहीं ना कहीं कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, खुद ये नहीं समझ पा रहे हैं कि यस, ये जो आपने डिसीजन लिया है ये सही है या गलत है, राइट, और आप खुद उसको लेके यस कॉन्फिडेंट नहीं है, बिकॉज आपके कुछ अपने पर्सनल डाउट्स हैं, कुछ अपनी आपकी पर्सनल कुछ पास्ट के कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं कि आपके लिए दोबारा विश्वास करना मुश्किल होता होता जा रहा है, राइट। सो जो एक डिस्ट्रस्ट इश्यूज बन जाते हैं, या कहीं ना कहीं जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स डेवलप हो जाती हैं, जिसमें आप ज्यादा खुद कंफ्यूजन में, खुद ज्यादा डाउट में है। अब इनफैक्ट जहां पे हम दूसरे को लेके अपनी धारणा भी बना लेते हैं, वो दूसरे की प्रॉब्लम नहीं है, वो किसकी प्रॉब्लम है? पर्सनल अपनी प्रॉब्लम है, राइट। आपने दूसरे को अपनी बात कहने का मौका ही नहीं दिया, आपने दूसरे को अपने आप को जस्टिफाई करने का मौका ही नहीं दिया। यू ऑलरेडी फ्रेम्ड ओपिनियन अबाउट देम, एंड दैट इज वेयर यू आर नॉट ओपनली लिसनिंग टू देम, राइट। इस वक्त जो अभी एक्टिविटी थी, उसमें आप सही मायनों में एक दूसरे को सुन रहे थे, विदाउट एनी बायस्ड, विदाउट एनी प्रेजुडिस देयर, राइट। आपने बिल्कुल खुले मन से, खुले विचारधारा से एक दूसरे को सुनना शुरू किया, और तभी वो एक्सेप्टेंस आ पाई। बट मैक्सिमम टाइम्स ऐसा नहीं होता है, राइट। सो वही चीज है कि हम वही बात है, जिस इशू को लेकर हम डिस्कस कर रहे हैं, जिस इशू को लेकर हमें प्रॉब्लम है, हमारा फोकस उसी पे होना चाहिए। If we start getting too much along with it, right, so definitely the confusion, the chaos, the problem gets more aggravated, वो कभी भी resolve नहीं होता। I'll speak up a few sentences and आप मुझे उसको decode करके देंगे। Pick up your battles। हर मुद्दा हर मुद्दा डिबेट का, डिस्कशन का नहीं होता, राइट, और हर में आपकी जरूरत भी नहीं होती है। बट बहुत बार हमारी आदत ये हो जाती है कि हमें ये साबित करना है कि हमें पता है, हमें इसके बारे में जानकारी है, और हमसे ज्यादा इसके बारे में कोई नहीं जानता है। अगर आपको वहां पे इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं लग रही है, तो बेटर अपनी शांति अमन बनाए रखें, और उस कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में अपनी टांग ना अड़ाएं, राइट। सो दैट इज पिकिंग अप योर बैटल्स वेयर यूर सिलेक्टिव। इसी तरह से एक हम अपना अपना मानसिक संतुलन बनाए रख सकते हैं, हम थोड़ा सा और एट पीस रह सकते हैं। अदर स्टेटमेंट इज नो व्हेन टू गिव अप, know when to give up।
जब हमें पता है कि सामने वाला उस स्टेट ऑफ माइंड में ही नहीं है कि जो आप उन्हें बताना चाह रहे हैं वो उसको सुन पा रहा है या समझ पा रहा है, तो समटाइम्स गोइंग क्वाइट, taking a pause, or maybe postponing the things is a better decision, rather than हम वो डिस्कशन को डिबेट मोड में ले आए, राइट? जहां भी डिबेट स्टार्ट हो जाता है वो फिर नेवर एंडिंग हो जाता है और फिर हम कभी भी सोल्यूशन तक नहीं पहुंच पाते हैं। अल्टीमेटली कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इज अबाउट अ म्यूचुअल डिसीजन, म्यूचुअल, जो दोनों की सहमति से होता है तभी वो रिजॉल्व हो रहा है। जहां पर भी एक ने अपना निर्णय दूसरे के ऊपर इम्पोज कर दिया वो कभी भी म्यूचुअल नहीं होता है, राइट? दैट इज डोमिनेंस। ओके, एंड रिस्पेक्टिंग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, रिस्पेक्टिंग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, जब हम दूसरों की अलग विभिन्न विचारधारा को सोच सुनते हैं, समझते हैं, उससे जुड़ पाते हैं, तभी यस कुछ सुधार आ पाता है, तभी हमारी सोच के दायरे बड़े हो पाते हैं, राइट? अदरवाइज हम उतना ही, हम अक्सर वही कहते हैं जो हमें पहले से पता है, राइट? उस जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी है, लेकिन जब हम सुनना शुरू करते हैं तब हम सही मायनों में अपने सोच के दायरे और अपनी जानकारी को और बढ़ा पाते हैं। ओके, लास्ट इज प्रायोरिटाइजिंग। प्रायोरिटाइजिंग, हमें क्या प्रायोरिटाइज करना है? ओके, पहले तो प्रायोरिटाइजिंग होता क्या है? प्रायोरिटी, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे? प्राथमिकता। अब हमारे लिए अभी प्रथम क्या आता है, क्या हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है? सबसे जो इंपॉर्टेंट है, एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन एंड द पर्सन इन्वॉल्व इन इट। हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? वो डिबेट, वो डिस्कशन जीत कर दिखाना कि यस नहीं नहीं, आई नो मच मोर देन यू, लुक आई हैव वन द डिस्कशन, राइट? एंड देन मे बी आई हैव लॉस्ट द पर्सन्स ट्रस्ट, लॉस्ट द पर्सन्स गुडविल, राइट? और वो इंसान आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है? देखें, कॉन्फ्लिक्ट हमेशा दो इंसानों में या दो से ज्यादा इंसानों में होगा। अब वही बात है कि वो लोग कौन हैं जिनसे आप कॉन्फ्लिक्ट में उलझे हुए हैं, राइट? वो आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं? सो वही है प्रायोरिटाइजिंग, यू हैव टू प्रायोरिटाइज व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू। समटाइम्स इन दैट केस इट इज एक्चुअली टू टेक, इट्स गुड टू टेक अ स्टेप बैक, कि मे बी राइट नाउ इट इज नॉट द राइट टाइम, right situation, right? So you should know when to give up, when to actually take a step back. एंड लास्टली, एक किसी भी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन जहां पे हमें लगता है चीजें सुलझ नहीं रही हैं या चीजें उस तरह से नहीं हो रही हैं जो आपकी उम्मीद के अनुसार हैं, उसके दो ही सोल्यूशन होते हैं। एक है भाग लो और दूसरा है भाग लो। भाग लो, भाग लो, जो सच में भाग लीजिए, मतलब वहां से निकल लीजिए, राइट? जब आपको लग रहा है कि अब यहाँ पे दम घुट रहा है, वो फिर चाहे पर्सनल मैरिज में है या फिर आपकी जॉब में है, प्रोफेशन में, वहां से अगर आपको लगता है कि अब नहीं निभाया जा सकता तो इट इज बेटर टू क्विट। या फिर भाग लो, विच इज पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट, बी अ पार्ट ऑफ इट, make them understand what is your point of view, get into the discussion and try, yes, reaching to a mutual consensus, right? I think that's all from my side for this conflict resolution, and thank you so much for the wonderful participation. Yes, over to you, Sunil Dutt sir. I'm So, done for the day. thank you, Yeah. Dr. Manjula. I think all the participants might have enjoyed your session because they were actively participating during the discussion session. So, Yes sir. thank you very much for engaging the session on conflict management.